Good afternoon, everyone. Here I am at a very odd time for any of these sessions we usually have. It's because I have a guest between us who is really crunching time and juggling tasks for all of us for the betterment of India and its different cities. Yes, you've guessed it right. Like on the poster, it says we have today none other than Rahul Ranjan Mahewal, IS Officer 2005 batch. Here he is with us on the same page with Juhi. Welcome, sir. I'm really happy and honored to talk to you today. Candidly, because otherwise I would have want to, take an appointment to meet you. Good afternoon. So nice of you, ma'am. Good afternoon. Welcome. Okay. So, like I introduced you as an IS officer, that's not only the limitation to your career. You have illustrious civil services journey. Plus, you take interest in different activities, which includes poetry. And that's the reason, that's the connection we both are talking today. Your sir is an alumnus of Patna University with an MA in history. He has served with distinction across key administrative roles in both Maharashtra and Bihar. His extensive postings include assistant collector in Ratnagiri, COZP in Sindhudurg and Sambhajinagar, district magistrate in Amravati, Yavatmal, Parbhani and Aurangabad, divisional commissioner in Purnia and Saharsa, and positions in Patna's rural development department. In Maharashtra, he has also held pivotal roles as Women and Child Development Commissioner, Commissioner of PMRDA in Pune, Additional Director General at Yashoda, and now Managing Director of the Maharashtra State Farming Corporation. I'm really happy because he also finds when I'm just wondering how does he get time, but he enjoys Hindi songs, especially by Mohammad Rafi and Kishore Kumar. And a coincidence today that it is Jagjit Singh's 82nd birthday. I'm sure you like him too, and you've been a creative soul. So history, then poetry, then civil services. So let's start with this. Which started first? Was the creative mind triggering you in the childhood? As a 10-year-old, what was the dream career? Ma'am, when I was 10 years old, so there was dream in most of the families of Bihar in and around me in lower middle class to be civil servant, and my father also encouraged me to do so. Right at the age Yeah. of 10, right at the age of 10, Okay. while I was in class 5, as you Yeah. rightly said. But by the age of 12, 13, I started listening to songs of old Hindi movies, especially Mohammad Rafi Saab, Kishore Da. And then suddenly I found I have inherent liking for writing and listening to songs. So I started composing a few lines and showing it to my teachers and class friends. And in that way, for career, it was civil services, and for personal satisfaction, it was poetry, especially romantic, and all went together in the coming years. Okay. Okay. So I have some information about you about sports as well, but I'll come to that later. Poetry. I have two of your books, nicely signed copies I've got, and I'm really considering myself lucky. Can we show it to the audience if you are also having the copies? Nasihat is Zindagi First by Rahul Ranjan Awesome. Mahewal. He's got his poetry book and with a beautiful cover. And as the title says, I'm sure it is most of his experiences encapsulated in the poetry. Right, sir? Tell us Yes, about this book first. yes. While growing up, many personal experiences, good, bad, bitter, sweet, everything comes to our life. That was kept in the reservoir of our my mind. At that time, we didn't have computer mobiles in 90s, but after Yeah. 2000, we got access to all these things. So I started digitizing, writing, compiling, and Ha. when I completed half of the service, then I thought, now in later part of service, I should publish it, whatever I have treasured or collected. So it was like this only. Yeah. That is in Okay. these collection of these type of things which a human being comes across in life and try to. I also want to give back to society whatever I have got from society. So through poetry also I have just pen down those things which anybody can
get benefited from in their life. Got it, sir. So, like we saw the cover of Nasihat-e-Zindagi, it also has your picture. So, let's talk about the cover design. How did that happen? In 2024, I was in Jammu for some election-related duty in Lok Sabha election. So we IAS officers are normally sent to other states for election duty as observers. Like if I belong to Bihar, but I am working in Maharashtra cadre, so I can be assigned duty by Election Commission of India to any third state of India except Bihar and Maharashtra for election duty. So by luck, I was in Jammu, so I was visiting the beautiful terrains. So this garden was somewhere near Patni Top. So these flowers, I got my pictures clicked by my colleagues or staffs who were there. And then while publishing the book, I thought, what better than in the lap of nature? So I just clicked for this. Okay, so you enjoy nature. I mean, that's literally ironical to you being a chief commissioner to PMRDA, wherein you are developing the city and then you are in the lap of nature that you enjoy. Okay. Nasihat-e-Zindagi, it has 51 poems of you, right? नज्म का संग्रह है, हम हिंदी में बात करेंगे तो नज्म संग्रह है और कैसे मतलब लिटरली आपने पढ़ाई तो आप कर रहे थे, आप पोएट्री पढ़ रहे थे, आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे, किसी का इम्पैक्ट रहा सर किसी पर्टिकुलर पोएट का आप पे? क्योंकि वो होता है हम लोग जब जिसको पढ़ते हैं हम उसकी तरह लिखने लगते हैं, सोचने लगते हैं शायद। इसके पीछे भी ऐसी कहानी है कि जब हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की जी। उस समय पटना में थे, तो हमारे समय में अभी पैटर्न तो चेंज हुआ है, मगर उस समय की बात बताता हूँ 2000 या उसके पहले की। तो 2 सब्जेक्ट लिया जाता था हमारे यहाँ मेन एग्जाम में। तो एक तो नेचुरली मैं हिस्ट्री से एमए कर रहा था, तो हिस्ट्री मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और दूसरी मेरी पसंद थी कि हिंदी लिटरेचर से कुछ करूं। काफी लोगों ने बोला ये थोड़ा कठिन होगा, मगर मैं बोला नहीं, मेरी मातृभाषा भी हिंदी और मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता भी था स्कूल कॉलेज में। तो मैंने उस दौरान काफी किताबें मैं पढ़ता था। तो निराला जी हो, हरिवंश राय बच्चन जी हो, जयशंकर प्रसाद जी हो, तो साथ ही मुंशी प्रेमचंद कहानियों में, कविताएं तो उनकी नहीं कह सकते मगर कहानियों में उनका भी बहुत असर था। उससे भी कई शब्द हमने चुने। और जो हिंदी सिनेमा की शायरी वाले गाने थे जो 50s, 60s, 70s तक ज्यादा चले हैं, उसको सुनने से भी मुझे थोड़ा ये सब बात लिखने में आसानी हुई और दिल को जल्दी छूता था वो सब। तो उस तरीके से मुझसे अगर पूछे तो गायकों में सबसे ज्यादा मोहम्मद रफी साहब का प्रभाव रहा, शायरों में साहिर लुधियानवी साहब का रहा जी। उसी तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां, सुमित्रानंदन पंत जी की प्रकृति की नेचर की कविताएं, निराला जी की गहराई वाली छायावाद की कविताएं, इस तरीके से कुछ नाम गिनाए जा सकते हैं। ओके, तो इन सब का इन्फ्लुएंस जनरली रहा। जब पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि ये बात शायद सबके इस मन में आती, तो हिस्ट्री क्यों? और दूसरा क्वेश्चन, एक फॉलोअप क्वेश्चन टू दैट कि कैसे एक फोकस रहा? क्या तब पोएट्री से थोड़ा फेज आउट हो गए थे, या आईएएस के जब तैयारी कर रहे थे तभी भी आप पोएट्री पढ़ रहे थे? डिड इट एनकरेज यू और वाज इट आउट ऑफ योर लाइफ फॉर दैट टाइम पीरियड? इसको ऐसे देख सकते हैं कि 13 साल की उम्र के आसपास मैंने पहली बार लिखा था और 18 इयर्स तक जब हमारा 12th हो गया तो उसके बाद कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आया, तो निश्चित ही थोड़ा पर्सनल चीजों के लिए समय कम होने लगा, लिखना, पढ़ना और खेलना भी। मगर जब भी मौका मिलता था, शनिवार रविवार, काफी अनुशासित था मेरा जीने का तरीका कि सुबह इतने बजे खास समय उठना है, इतनी देर पढ़ना है, बीच में थोड़ा रेस्ट लेना है, शाम को थोड़ा खेलना है, थोड़ा गाना सुनना है। तो 5 दिन तो काफी पढ़ाई करते थे, मगर वीकेंड पे उस वक्त भी मेरा ये सिलसिला टूटा नहीं, लिखता रहा, सुनता रहा, ताकि अपडेट रहूं क्या हो रहा है साहित्य जगत में, म्यूजिक में। और हिंदी, चूंकि हिंदी मीडियम में मैं पढ़ता था और हिंदी मैंने ले लिया सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, तो
करियर के ख्याल से भी मुझे वो चीज मिली जो मेरे दिमाग को पर्सनल संतुष्टि के लिए भी जरूरी था। जैसे चाहे वो कबीरदास के दोहे हो, सूरदास भी मुझे पढ़ना पड़ा, कुछ मजबूरियां भी थी कि वो नहीं पढ़ेंगे तो हाँ मार्क्स नहीं आएगा, ये एक बात नहीं नकार सकते, मगर मेरी रुचि भी। जैसे सूरदास जी का भ्रमर गीत सार है, वो काफी अलग किस्म का है, उद्धव जी और गोपियों के संवाद पे उसकी गहराई को समझने की कोशिश की। सूरदास जी की कृष्ण भक्ति हो, तुलसीदास जी की श्री राम भक्ति हो, तो इसको केवल उस रिलीजियस तरीके से ना देखते हुए व्यवहारिक दुनिया में इससे क्या सीखा जा सकता है वो समझा। हिस्ट्री मैंने इसलिए कि 12th तक साइंस पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग करने की ओर ऐसा कोई झुकाव नहीं था, तो या तो साइंस के सब्जेक्ट से आगे बढ़ते, तो मैं बोला नहीं, मेरी रुचि के विषय यही है, हिस्ट्री हिंदी वगैरह, तो जब सिविल सर्विसेज करना है तो शायद मैं साइंस के सब्जेक्ट से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, और कहीं ज्यादा दिक्कत हो गई तो असफल होने का खतरा ज्यादा है। Okay, तो that was a calculated risk. Methodically आपने हिस्ट्री आपने चुना। आपने दो बातें की जो बहुत अच्छी, जो अनुशासित आप थे, डिस्ट्रैक्शंस भी उतने नहीं थे जब आप पढ़ रहे थे। इंफॉर्मेशन का जो अभी एक फ्लड आ गया है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं देख रही हूँ देयर आर एप्स एज वेल हु आर डूइंग गुड। एआई का, डिजिटल एरा का बहुत अच्छा यूज भी हो रहा है। दैट शायद आपके या मेरे समय तक भी जब हम लोग पढ़ रहे थे हमें वो इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं था। अभी एप्स के द्वारा लाइक आईएएस के मॉक इंटरव्यूज भी वीडियोस के रूप में वायरल हो रहे हैं। कितना आप उसको एग्री करते हैं, कितना नहीं, उससे क्या इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स पे जब वो पढ़ाई करते हैं सिविल सर्विसेज की? इज डिजिटल गुड और बैड, और हाउ डू यू लुक एट इट? डिजिटल इज डेफिनेटली गुड मैम, उससे फायदा हो रहा है। मेरा भी तजुर्बा है कि मैं खुद तो नहीं डिजिटल एज में पढ़ पाया जैसा आपने कहा, और अभी जब काम करता हूँ और अभी भी स्टूडेंट सबसे टच में रहता हूँ, कोई दोस्त की फैमिली में है, कोई हमारे कलीग का है, कोई हमारी जान पहचान में ऑफिस में काम करने वाले का बच्चा है, वो आते हैं कभी कभी कुछ पूछने, तो कुछ वो दिखाते हैं कि हमने चैट जीपीटी से ये लिया है, गूगल से ये लिया है। तो इसका कोई मतलब, इसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है कि फायदा नहीं है। डिजिटल से बहुत फायदा है नॉलेज को एक्सेस करने में, लेटेस्ट या 2-3 व्यू भी आप बना सकते हैं, अलग अलग साइट से आंसर्स मिलते हैं, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच ले सकते हैं। इतने के बावजूद मैं इस बात को भी नहीं नकारता कि जो पेन और पेंसिल और आंखों से हम पुस्तकों के पन्ने पलट के सीखते हैं, कोई सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो हिंदी हो, तो उसमें जो एक इफेक्ट होता है वो थोड़ा मुझे ज्यादा सूदिंग लगा। स्क्रीन टाइम से, थोड़ा स्क्रीन के एक्सपोजर से कई बार बहुत देर तक कंसंट्रेट करना मुश्किल होता है, और मेरी यही इस मामले में राय है कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसकी मदद लेनी चाहिए, एआई, चैट जीपीटी या डिजिटल कुछ भी इंफॉर्मेशन है, मगर ज्यादा अभी भी रिलाई करना चाहिए पेन पेंसिल या जो भी लिखने का है, कागज पे लिखना, नोट्स बनाना, उसमें अपनी मौलिकता को आने देना। बाकी बच्चों से थोड़ा मेरा आंसर कैसे अलग हो सकता है, एक ही टीचर ने या एक ही साइट ने जो हमें सिखाया है उसमें हम ऐसा क्या नया जोड़ें कि उसकी मूल आत्मा पे असर नहीं हो, मगर कॉस्मेटिक थोड़ा चेंज ऐसा हो कि हमारा आंसर जो भी पढ़े, इवेलुएट करे, उनको लगे कि इनमें एक फंडामेंटल कुछ रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, ये चीजों को अलग तरीके से भी देख पाते। ओके, तो मुझे लगता है कि इट इज ऑल अबाउट बैलेंस, लाइक आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर आंसर। ओके, ऑल्सो आपने बोला आप खेलते भी थे, तो मैंने आपके बहुत एक रिसेंट इंटरव्यू में सुना टेनिस में आपकी काफी रुचि है, तो हाउ डिड लाइक यू स्टिल प्ले रेगुलरली, और कैसा रहा वो जर्नी स्पोर्ट्स में? बचपन में सबसे पहले क्रिकेट और फुटबॉल हम लोग खेलते थे, 10-12 तक भी, 18 इयर्स। यहीं पे एक और पर्सनल बात जोड़ना चाहूंगा जो इससे रिलेटेड है कि आफ्टर 12th हम कुछ दोस्त नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला का रिटन एग्जाम दे रहे थे। ओके, मुझे पता था मेरी पर्सनालिटी फौज के लिए शायद मैं उचित नहीं रहूं, तो फिर भी दोस्तों के साथ एक ग्रुप मेंटेलिटी थी, तो एग्जाम दिया, उसका सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड हुआ, तो मैं फाइनली सेलेक्ट हो गया। मेरे सभी दोस्तों में केवल मैं हुआ पटना से, तो मुझे पता नहीं भी था और फिर भी अच्छा लग रहा था। तो 18-19 साल की उम्र में मैं खड़गवासला जो पुणे में ही है एनडीए ज्वाइन किया।
जी, ओके। अभी तक शायद मैं बायोडाटा में नहीं लिख पाया था, तो यहीं पे मुखातिब होना चाहूंगा। और वहां जी। आने के बाद उस ट्रेनिंग, प्रहार मूवी जो है नाना पाटेकर साहब की, वैसा ही हाल हो गया मेरा। और मैं 1 सप्ताह में ही हिम्मत हार गया। ओके। जबकि मतलब काफी लोग कर रहे थे, बट कुछ बच्चे नहीं कर पाए, जिसमें मैं एक था। ऐसे हम 6-7 बच्चे ही थे 300 में। ओके। मैंने अपने घर पे फोन करके स्वर्गीय पिताजी को, उन दिनों थे, उनको बुला के और किसी तरह वहां से रिजाइन करके उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज थी और करके मैं वापस पटना लौट गया। 95 की बात है, जी, जी, 1995। जी। ये एक टर्निंग पॉइंट है। तो फिजिकली मैं क्रिकेट फुटबॉल खेलने की वजह से फिट था, बट किसी तरीके से, जो बोलते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मैं डर गया या क्या हो गया उस समय में। मुझे बहुत घर की याद आई, मुझे लगा कि मेरे से नहीं होगा। इससे अच्छा है चलो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते, वो शायद आसान होगा। एक स्केपिस्ट वाली फीलिंग भी आई थी होम सिकनेस के साथ। और डर गया, मैं अंदर से डर गया। लाइफ में उस टाइम मैं डरा था और मैं चला गया वापस। फिर बहुत जॉब जब हो खूबसूरत गया बात है। तो जी, तो ये भी एक है लाइफ का एक बहुत बड़ा मोड़ था, उतना बड़ा डिसीजन लेना एक और लोअर कितनी मिडिल बड़ी क्लास के बात है कि बच्चे के आप आज कन्फेस भी कर रहे हो कि इट इज ओके टू एक्सेप्ट एंड इट इज ओके टू एक्सेप्ट फियर्स एंड करना फेलियर्स चाहिए। एज वेल। मतलब कैसे भी एम्ब्रेस कर लो। हम अपनी बात है, वी यू नो देयर इज समथिंग बेटर फॉर अस। ओके। जी फिर से बात, क्योंकि आपने, हम आपकी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट बुक मेरे हाथ में अभी है, नसीहत जिंदगी, राहुल रंजन जी महिवाल द्वारा। सर से दरखास्त करेंगे कि एक कुछ इसमें से आप पढ़ के सुनाए, क्योंकि मुझे, मैं खो गई थी। आई वाज सोक्ड इन इट। मैंने दोनों जी। किताबें पढ़ी। और ये किताब में ऐसे हुआ कि सर, लाइक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैंने जब ये बुक खोली तो एक ऐसा कुछ मैंने पढ़ा जो शायद ऐसा लगा कि ये मेरे लिए ही था। और उस दिन जी जो मैं सोच रही थी, इट केम टू मी थ्रू यू। तो आपको नमन करते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप कुछ इसमें से पढ़ें, आपकी इसमें जो पसंद मैं का। जी इसमें जो मैडम तीसरे नंबर पे है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा अपने सभी जी, दोस्तों के बिल्कुल। लिए। बिल्कुल। क्योंकि उसमें बिल्कुल। वही है जो एनडीए छोड़ने के बाद मुझे भी बहुत ताने सुनने पड़े समाज में, क्यों छोड़ दिया, क्या करेगा, क्लर्क का क्या बच्चा बात है, है, क्या बात टीचर है। का बच्चा मन है, का क्या। आपका है, बिल्कुल पढ़िए। जी, एक तो नहीं, दो उसको मैं तीन पढ़ता हूँ। आपके हिसाब से पढ़िए। आसरे का एक चिराग, 100 अंधेरों के बरक्स। आसरे का एक चिराग, 100 अंधेरों के बरक्स। शब टिकती कहाँ, उजले सवेरों के बरक्स। कोई ठाने तो तारे तोड़ ला सकता, एक बिजली बहुत बादल घनेरों के बरक्स। धमकियां जिंदगी की, धमकियां जिंदगी की, जोर आजमाइश जरूरी। इनसे आंखें ना मिलाओ तो शख्सियत अधूरी। खाना बदोशी की धुन खड़ी, कमजोर डेरों के बरक्स। आसरे का एक चिराग, 100 अंधेरों के बरक्स। चंद घावों से जिनकी हिम्मत टूटती नहीं, तकदीर से जुदा तदबीर की डोर छूटती नहीं। जवाब खोज लेते सवालों के घेरों के बरक्स। शब टिकती कहाँ, उजले सवेरों के बरक्स। ताश के पत्ते यहाँ बड़ी जल्दी ढह जाते, कहर बरपाते झंझावात जो हंस कर सह जाते। मजबूत पहाड़ ही टिकता, कमजोर पेड़ों के बरक्स। आसरे का एक चिराग, 100 अंधेरों के बरक्स। माजी बदल न सकते, संवार ले मुस्तकबिल हमारा। एक दिन जरूर चमकेगा गर्दिश का सितारा। कुदरत रंग भरती पक्का, कई चितेरों के बरक्स। आसरे का एक चिराग, 100 अंधेरों के बरक्स। शब टिकती कहाँ, उजले सवेरों के बरक्स। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। और ये मैंने पढ़ा, तो इसके लिए आपके लिए एक लाइन कि तहजीब है उनकी आहट में भी। सर के लिए, राहुल जी के लिए लाइन कि तहजीब है उनकी आहट में भी, यानी कि उर्दू आती है। शुक्रिया। तो उसके बाद यू केम आउट ऑफ दैट फेज एंड आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। कितना समय लगा, 2 दिन 2 महीना वो सेटबैक से निकलने में? जी, उससे आने के बाद मैं 1 से 2 महीने में वापस हिस्ट्री से ग्रेजुएशन करने की शुरुआत किया और क्या काफी बात। दिल लगा के पढ़ाई शुरू की। उसके हम्म। पहले 12th तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहा था। और हम्म। सभी बच्चे शायद उस वक्त यही पढ़ते थे, डॉक्टर इंजीनियर जी। बनना।
बट मैंने एकदम से ब्रेक लिया और बोला अब मैं हिस्ट्री लूंगा, और उसके बाद पिताजी ने मेरा साथ दिया, हर फैसले में वो मेरे साथ थे। आज उनकी कमी भी बहुत महसूस होती है, मगर हम्म। वो बोले जो करना है मुझे तुम पे भरोसा है। तो क्या उसके बात, बाद बहुत बड़ी ऐसा बात है हर जी पेरेंट के लिए शायद। और कितना जी डिफिकल्ट रहा होगा सर आप उनके लिए उस जमाने में, जी आपको ये कहना कि आप साइंस छोड़ के हिस्ट्री कर लो, बिकॉज उतना एक्सपोजर ही नहीं था, उतने जी अपॉर्चुनिटीज शायद मतलब मेरे समय में भी वही हुआ कि हम लोग एक्सीडेंटल इंजीनियर्स बन गए, कि पहले जी, इंजीनियर बन जाओ और फिर आप बिल्कुल पोएट्री करो या जो भी पैशन है, शायद वो सपोर्ट हर पेरेंट अपने बच्चे को दे पाए। जी और मुश्किल तो है, और सच में उनको नमन करते हुए तो एक इसी किताब से और आपकी इजाजत से आपकी कुछ जी लाइनें मैं पढ़ना चाहूंगी, जिसमें वेलकम आपने बहुत खूबसूरत बात लिखी है। और ऐसे तो हर पन्ना मेरे लिए बहुत स्पेशल होता गया जितना मैं पढ़ती गई, पर फिर भी ये कुछ लाइनें दैट स्टेड विद मी, तो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ ये, कि ये है पेज नंबर 60 से। जी नसीहत जरूर देना, जी हाँ जी नसीहत जरूर देना, पहले खुद अमल करना। जी हाँ नसीहत जरूर देना, पहले खुद अमल करना, बिना लियाकत आसान नहीं, मसला हल करना। सही कदम सही वक्त पर उठाना पड़ता, सही कदम सही वक्त पर उठाना पड़ता, तैयारी मुकम्मल ना हो, आज नहीं कल करना। जी बड़े मकसद हो छोटे में उलझना नहीं, बड़े मकसद हो छोटे में उलझना नहीं, अपने को दूसरे से ऊपर समझना नहीं, कहीं जाना तो मीठी सी हलचल करना, नसीहत जरूर देना, पहले खुद अमल करना। तो जिसको भी पढ़नी है, किताबें अवेलेबल हैं, आप खरीद के बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि पूरा पूरा मैं चाहूंगी कि आप जो है हर कोई अपनी पाठक अपना स्वाद ले। ओके। और एक और सर ने लिखी है, वो खुद के लिए लिखी, कैसे लिखे मुझे नहीं पता, बतौर पाठक मुझे लगा कि बहुत खूबसूरत बात। 28 नंबर पर नसीहत जिंदगी, राहुल रंजन महिवाल के काव्य संग्रह नज्म संग्रह से, कि बड़े ओहदे के साथ, बड़े जी ओहदे के साथ जिसकी सोच हो चुनिंदा, वही है बनने लायक अवाम का नुमाइंदा। तो बहुत बहुत ही शब्द चयन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हिंदी और अंग्रेजी लिखती हूँ सर, उर्दू मेरी ना के बराबर, मतलब आप कह सकते हैं कमजोर है, बट आई एम स्टिल अ कनोजर ऑफ इट। जी अच्छी लगी बातें, और बिल्कुल साफ गोई से आपने लिखी है, कहीं पर एग्जैजरेशन नहीं है, कहीं पर फ्लैटरी नहीं है, आपने जस का तस लिखा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। भाषा शैली हमेशा ऐसी रहेगी या कैसे आप, मतलब आप क्योंकि आपके वेरिएशंस भी बहुत है, ये किताब में मैं जी देख रही हूँ, अपने टॉपिक्स भी, आपने फौज की बात की, आपने कुछ सैनिकों पे भी लिखा है जी इस जी किताब में। क्योंकि देशभक्ति एक ऐसा जज्बा है, ऐसी भावना है जो सभी लोगों में होने चाहिए। पूरी दुनिया के आप देखें देश, तो अपने सभी सैनिक अपने अपने देश के लिए जान निछावर करते हैं। यानी जी। ये वो फीलिंग है जो हर जगह होनी चाहिए और है। तो उसको हम हम्म। सभी हिंदुस्तानियों में भी है, और उसको समय समय पे उजागर करना चाहिए, नई पीढ़ी को बताना चाहिए कि कैसे हमारे लोग शहीद हुए हैं, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और दे रहे हैं। और हम लोग जो सिविलियन यहाँ आराम से रहते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा त्याग उनका भी है। इसके अलावा जी मैम, इन दो पुस्तकों में जो नहीं है, वेरिएशन की आपने बात की, तो मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा जी कि बिल्कुल। जो ये फौजी दोस्तों, फौजी भाइयों पे जो लिखी है, उसमें मैंने ज्यादा हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया है। हाँ उसको बोलते हैं कि मतलब उसमें उर्दू के उतने ज्यादा नहीं है। उसी तरीके हाँ। से कुछ मैं हास्य व्यंग भी लिखता हूँ, तो जी, उसका मैं क्या अलग से बात है। पब्लिश करूंगा। बट उसके जी, बारे में मैंने कुछ हास्य व्यंग भी मैंने थोड़ा लिखा है, वक्त पड़ने पर वो तो भी मतलब सामने ये तो रख, वो भी बहुत मैं बड़ा सुना क्वेश्चन सकता है। आप लोग हमेशा, मतलब मैंने आप लोग को देखा, आप लोग बहुत सीरियसली होके काम करते हो, तो हंसी मजाक, हाउ इज द डे इन योर लाइफ, लेट्स टॉक अबाउट इट, अ रूटीन डे। लाइक एक तो वर्क डे हुआ और एक ऐसे हुआ, व्हाट हूँ। इज द जी हाँ, लाइट साइड ऑफ यू। अभी जैसे वर्क डे तो चलिए ऑफिस में जो काम है वो करके आ गए, थोड़ा बच्चे के साथ, हमारा बच्चा 11th में है और लड़की 9th में जा रही है, तो थोड़ा उनके साथ पढ़ाई की बातें करता हूँ। जी क्योंकि मेरे पहले का भी जो लाइफ है उसमें गाना सुनना तो आपने भी देखा, बताया मैंने, आपने पढ़ा भी बताया। और कविता और मोहम्मद रफी साहब के गाने सुनना एक और मेरी हॉबी भी रही है और जरूरत भी थी स्टूडेंट लाइफ में। वो था, मैं 9th 10th के बच्चों को पढ़ाता था, हम्म। प्रोफेशनली भी और थोड़ा शौक से भी, और उसमें मेरी भी तैयारी होती थी।
तो अभी भी मैं अपने बच्चों को भी थोड़ा वक्त देके पढ़ा लेता हूँ, क्या बात है। और सुबह थोड़ा योगा कर लिया, वॉकिंग कर ली, ऐसा चलता है। और रोज एक दो गाने 3-4 सुनता जरूर हूँ शाम को घर में आने के बाद, ऐसे ही यूट्यूब पे लगा लिया, टीवी पे लगा लिया, अभी तो और ऐसा ही स्क्रीन चलता टाइम, है। और स्क्रीन स्क्रीन टाइम आप सोशल मीडिया टाइम, पे है तो हम आपको फॉलो कर सकते हैं अगर आप हैं तो। जी हम तो मैम फेसबुक पे भी नहीं हैं, बस यूट्यूब है मेरे पास और व्हाट्सएप है, क्योंकि ऑफिस के भी हमारे जी मैंने कई सारे देखा, काम जी व्हाट्सएप मैंने पे हो रहा देखा है। है। फेसबुक से हाँ मैं हट तो गया, बहुत पहले था मैं, जी, इंस्टाग्राम पे भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आई नो। वक्त नहीं मिल पाता है, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे ही थोड़ा पर करता आप हूँ। बहुत पॉपुलर है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि काफ़ी रील्स आपके बारे में है वहाँ पर और जानकारी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो व्यक्ति स्वयं सोशल मीडिया से दूर है, उसके बारे में सोशल मीडिया पे लगातार बातें हो रही हैं। ये अच्छी बात। टेक्नोलॉजी जैसे कि आपने कहा बैलेंस्ड वे में अच्छी है। तो आपका एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्क्रीन टाइम है, यू हैव अ फैमिली टाइम एंड अ वर्क टाइम जो आप सिटी के लिए, जी सिविल सर्विसेज के लिए और हम जैसे सबके लिए करते हैं। ओके, तो लाइक जश्न दीवानगी जो बुक है आपकी, उसका कवर भी मुझे ऐसा लगा, बहुत ही मुझे ऐसा लगा कि बहुत खूबसूरत बनाया है फिर से, कि जी एवरीबडी विल लाइक टू पिक इट अप, एक बार तो खोलकर जरूर देखेगा, इतना सुंदर ये कवर है। तो इसके बारे में भी बताइए, इस किताब के बारे में क्या जी आपकी सोच रही, कैसा जर्नी रहा इसको लिखने का, कंपाइल करने का? 13-14 साल की उम्र से जो लिखना शुरू किया था, तो शुरुआत रोमांटिक वाले से हुई थी। जी, वो थोड़ा जी, आसान भी था, और उस उम्र में मुझे लग रहा है वो फीलिंग ही सबसे ज्यादा आ रही थी टीनेज सबसे में। आखिरी में, हाँ जी, इंटेंस से ही शुरू हो गया था ये सब, तो वो सब मैं पहले जो कागज पे लिख लेता था, हाँ। वो सब कागज मैंने सेफ रखे थे संभाल के, सुरक्षित। फिर इतने कहीं भी पोस्टिंग जा, के बाद भी। इतने पोस्टिंग से बाद भी वो कोई डायरी ना इधर उधर हुई ना। हाँ, कागज 25-30 सालों में पुराना हो गया, थोड़ा खराब होने लगता है, तो उसको फिर से लिख लिया। और जब जॉब में आ गया, सिक्योरिटी हो गई रोजी रोटी की, तो फिर इन सबों को टाइप वाइप करके भी सेव कर लिया, क्योंकि ये क्या सब हुआ? अपने खुशी के लिए लिखा हुआ था मैंने, इससे मुझे कुछ ऐसा दूसरा कुछ नहीं था सब। बाकी जॉब से चल हुँ, रहा था काम, ये एक मन की खुराक के लिए बोलिए, या अपनी पहचान एक अलग भी बने समाज में। वाह! तो ये सब मैंने जब जमा किया, तो 2 साल पहले जब देखा कि अब ये 100 से ज्यादा हो गए हैं, केवल हुँ, रोमांटिक किस्म के हैं, इसमें दूसरा कुछ नहीं है फीलिंग। जी, जी, नसीहत जिंदगी तो थोड़ा मिक्स्ड है, बट जश्न दीवानगी, दीवानगी का ही जश्न है कि कितनी तरह की खुशियां हैं दीवानगी एक इंसान के लिए, और कैसे जी। उसको हम व्यक्त करें, जाहिर करें इसके लिए। तो इन सबों को एक साथ और ये करके हार्ड मैंने कवर भी पब्लिश रहा, किया। मतलब ये इसका जो है हार्ड कवर है इस बुक का। हम इसका थोड़ा दर्शकों को आगे, दिखा रही हूँ। इसको राधा कृष्ण प्रकाशन ने दिल्ली में जी। पब्लिश किया है, तो हुँ, 2024 में आया इसका पहला। हुँ, हुँ, हुँ। इसको मैंने, ये पहला होने से इस पे काफी ज्यादा ध्यान से कि भाई बेहतर से बेहतर हो। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे वाले में ना हो, मगर ये पहला था तो काफी एहतियात बरती, और जितना हो जी, सकता था जी, अपना बेस्ट दिया इसमें। ये जी। 100 के ऊपर और है इसमें जी, जी, कॉम्बिनेशन। और इसपे ना आपने बहुत अच्छी बात, ऑडियंस को बताऊँ मैं, कि कवर पेज पर भी इसी संग्रह से एक जी सर्ग की पोएट्री है। ओके, जी आई थिंक ये गज़ल है, और कुछ कहाँ-कहाँ पे जहाँ से मैं समझ पाई हूँ, बहुत बार जैसे एन्क्रिप्टेड रहता है कि पहले के पोएट्स हुए, सेंट्स जी हुए, या जो भी बहुत अच्छा लिखते थे या जो अभी भी गज़ल या नज़्म लिखते हैं, उसमें वो लोग लास्ट 2 लाइनों में अपना नाम इंक्लूड करते, सर ने यस। बहुत कम किया है पर कहीं-कहीं पर किया है। और सरनेम इंक्लूड किया है, राहुल इंक्लूड नहीं किया है, महिवाल इंक्लूड किया है। अ, आपसे लिखने के लिए निवेदन कि महिमा। इस पे भी कुछ पढ़ के सुनाएँ मुझे। जी हाँ, इसमें 29, 29 नंबर पेज पर है, 29 पे। जी, जी, ये निशानी चांद की, ये मोहब्बत के जज्बात को आवाज दी गई है। जी। रुखसार पे तिल, रुखसार हुँ, पे हुँ। तिल, ये निशानी चांद की, जी, सबसे रोज है सुनते कहानी चांद की। चेहरे से अपने जो जुल्फें हटाए वो, हो जाए हम पे भी मेहरबानी चांद की। क्या बात है! क्या बात है! 14वीं का चांद दिखता कहाँ सबको, 14वीं का चांद दिखता कहाँ सबको, पूरी होती नहीं तलाश नूरानी चांद की।
चांदनी रात चोर को लगती नहीं भली, चांदनी रात चोर को लगती नहीं भली, दिलबर छुपते रहते देख जवानी चांद की। चांद एक चकोर कितने तकते राह उसकी, चाहने वाले यूं बढ़ा देते परेशानी चांद की। कब तक दिन में न निकलेंगे बाहर, हमें भी है जिद आजमानी चांद की। शबनमी रात का एहसास तीर चुभाता, बातें शुरू जो हो रूमानी चांद की। इंतजार चांद का मुश्किल से कटता दिन, निगाहें हसरत अपनी पूरी दीवानी चांद की। एक म्यान में दो तलवारें रहेंगी कैसे, एक म्यान में दो तलवारें रहेंगी कैसे, ऊपर देख नीचे बढ़ती हैरानी चांद की। मेरा चांद सामने आया चांदनी रात में, चमक फीकी पड़ गई आसमानी चांद की। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ये रिमेम्बर कब लिखा था ये मैंने 2 साल पहले लिखा है, 2024 में। ओके, और टू आस्क कि ये यहाँ पर म्यूजिक्स कौन है, इनका रेफरेंस क्या है जिनके बारे में लिखा गया है ये? तो आई वाज अबाउट टू से कि शायद कॉलेज डेज का होगा, बट गुड दैट ये अभी ताजा है, ये 2 साल पहले का है और शुरुआत क्लास 8-9 से ही है, वो सभी इसमें है। अच्छा। लंबा है सफर, 30 सालों से ज्यादा। उनको जिनके लिए लिखा है उनको पता है कि किताब छप गई है? हाँ, उनको पता। क्या बात है, क्या बात है। तो काफी लोग जुड़ गए थे सर, और क्योंकि हम बातचीत कर रहे थे, मैं उनका नाम नहीं ले पा रही थी। सुरेंद्र सराफ जुड़े हैं, नीलम सक्सेना जी स्वयं जुड़ी हैं, LWG की फाउंडर, और जिनके पेज से आज हम लोग सब रूबरू हो रहे हैं आपसे। और अनिल वार्ष्णेय जी जुड़े हुए हैं, और काफी और लोग भी आपको सुन रहे हैं, आपके कमेंट्स दे रहे हैं, उनको बहुत अच्छी लग रही है आपकी रेंडिशन। मेरा मॉडरेशन भी अच्छा लग रहा है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि आपने कहा, बिकॉज यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ ग्रिट व्हेन एट योर लेवल, क्योंकि यू आर इन पब्लिक आईज, आप पब्लिक सर्विसेज में हो, आप सिविल सर्विसेज में हो। ऐसी कोई बातें जो उस एरिया से आप हम लोग को बताना चाहेंगे एज सिविलियंस, की कैसे मतलब आप एनकाउंटर करते हैं, या फिर एक क्या बैलेंस एक पर्सनालिटी में आता है, या फिर पर्सनालिटी में कोई चेंज आया आफ्टर बिकमिंग एन IAS, या वैसे ही थे एंड यू आर जस्ट फिट फॉर दिस रोल? जी, बेसिकली तो वैसा ही था, मगर ट्रेनिंग और जॉब की जरूरतों के अनुसार जो चीजें बदली हैं वो ये है कि पब्लिक डीलिंग वाले जो ऑफिस होते हैं हमारे, जहाँ जनता आती है, आम जनता, वहाँ काफी पेशेंस, संयम, सब्र से काम लेना पड़ता है। कई बार बहुत ज्यादा, जैसे तो शिष्टाचार रहना ही चाहिए हर एक आदमी में, मगर तो काफी गरीब लोग भी आ जाते हैं, कम पढ़े लिखे भी आते हैं, और समाज के ऊंचे तबकों से तो आते ही हैं। तो ऐसा न लगे किसी गरीब या मजबूर, बहुत ही मुसीबत के मारे इंसान को कि मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसका पूरा ख्याल रखते हुए हम लोग उनसे काफी, खास करके मैं अपनी तरफ से बहुत एहतियात बरतता हूँ कि मेरी बातों से आने वाले किसी विजिटर को ये न लगे कि मुझे जल्दी में चलता कर दिया, बातें अनसुनी की, अनमने ढंग से। क्योंकि ये बड़ी एक खराब बात है कि ऑफिस में जाइए तो बाहर बिठा के रखते 5-5 घंटे, या बहुत देर बुलाते नहीं, चिट्ठी लिखते, कभी बोलते आज नहीं मिलेंगे। तो मैंने पर्सनली कोशिश किया, ये सब जब मुझे बताया गया कि ऐसी छवि है, और जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमें भी 1-2 ऐसा कड़वा अनुभव हुआ था किसी सरकारी डिपार्टमेंट का। उस पर मैंने एक रचना लिख दी थी जो इस किताब में नहीं है, वो भी मतलब तो बीच में मैं 2 मिनट में आपको सुना सकता हूँ, आपके पास अगर आप बिल्कुल 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 कहिए सर, मंच आपका है। एक जस्ट बता देते हैं, यहाँ हम बहुत सारे सरकारी लोग बैठे हुए हैं, तो चूंकि यह साहित्यिक चर्चा है तो यहाँ बोल सकते हैं। इसमें ऐसा था बैकग्राउंड की, एक सरकारी जॉब में रहते हुए गुजर गए अचानक पिताजी। अब घर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, बच्चे, उनकी वाइफ, सब पैसे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, जो हक के पैसे हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट को अचानक गुजर जाने पे मिलता है सरकार से। जी। उसमें जो पूरा तजुर्बा हुआ, ये मैंने 2001 में लिखा है, अभी से 25 साल। उसका शीर्षक है काला धन और सामाजिकता।
ब्लैक मनी एंड सोशल नॉर्म्स ओके। को मैंने हिंदी का ज्यादा प्रयोग किया है। वो ऐसा है, काला धन और सामाजिकता यूं तो विरोधाभासी विषय हैं। काला धन और सामाजिकता यूं तो विरोधाभासी विषय हैं, वर्तमान युग में पर अत्यंत सदय हैं। नैतिकता ने पाठ पढ़ाया, पाप है रखना काला धन। नैतिकता ने पाठ पढ़ाया, पाप है रखना काला धन। सामाजिकता का सरोकार है, धन भर लो तुम टन के टन। महापुरुषों ने बार बार कहा, भ्रष्टाचार अभिशाप है, संलिप्त व्यक्ति को देता हर पल ये संताप है। सच्चा सुख है जीवन का मेहनत की रोटी खाने में, असंतोष को दरकिनार कर हरि भजन गुनगुनाने में। आज के मानव ने पर सर्वथा विपरीत रुख अपनाया है, सबके हृदय में लालच देखो कूट कूट कर समाया है। मेहनत की कमाई, मेहनत की कमाई, मेहनत की कमाई बस इतिहास के पन्नों में ही ज्ञापित है। काले धन की महिमा तो अधिकारियों द्वारा सत्यापित है। क्या बात है, क्या तो बात ऐसे करके एक मैंने चुभता हुआ लिखा था 2001 में। जी बिल्कुल, क्योंकि वो मन के आपके उद्गार है, मन के भाव हैं जो आए हैं। और उस साल कभी क्या हुआ, अच्छे अनुभव भी होते हैं, कभी कड़वे अनुभव भी होते हैं, कड़वे क्योंकि थे। अब जी, क्योंकि हम जब आपसे मिले या किसी ऐसे पावरफुल, क्योंकि क्या होता है आप लोग के पास एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी और पावर है। ओके, आई एम नॉट अगेन डिफरेंशिएटिंग। सो उस वजह से क्या हो जाता है, एक हिचक भी रहती है मेरे जैसे सिविलियंस को कि क्या हम आपसे बात करें, और एक बहुत ज्यादा परसेप्शन भी होता है कि यू नो देयर ऑफ दिस टाइप, क्योंकि उनका एक अनुभव हो चुका है या उनके जैसों का एक अनुभव हो चुका है जो एक बहुत ही टाइप कास्टेड है। तो आई एम रियली लाइकिंग कि आप लोग इसको चेंज कर रहे हैं। और अभी तक मेरे अपने अनुभव बहुत अच्छे रहे हैं। बहुत कभी भी शुक्रिया। किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिलने में, आपसे मिलने में। और इसी के बारे में बात कर रहे थे, इस जश्न दीवानगी के बारे में, जहां पर आपने बहुत दिल लगाकर इस किताब को में सहयोग दिए, कंपाइलेशन किया। 100 से अधिक कविताएं हैं इसमें। आपने इसमें एक बेकरार नाम से लिखा, और इस किताब में सर ने टाइटल्स दिए हैं, नसीहत जिंदगी में टाइटल्स नहीं दिए हैं। वो क्वेश्चन भी मेरा उनसे रहेगा, पर अभी उनसे उनकी इजाजत से एक छोटा सा एक और उनका काव्य है बेकरार। और यहाँ पर बहुत अच्छी भाषा, बहुत ही सरलता से आपको समझ आएगा। सीधे आती हूँ कविता पर कि सूली पर चढ़ने को तैयार हो रहा है, दिल लगाने दिल बेकरार हो रहा है। बस एक चेहरा मन में आबसा, लाख चाहा न हो प्यार हो रहा है। चांद के रहरे के छुपने की वजह क्या, उन्हें देख निहायत शर्मसार हो रहा है। वो छत पे होते खड़े, वो छत पे होते खड़े लंबी कतार नीचे, आधा शहर इश्क का बीमार हो रहा है। पास की गलियां इतनी सूनी क्यों दिखती, आशिकों से एक रास्ता गुलजार हो रहा है। रात को जगे फिरते दिन में सब नदारत, हर कोई नींद बिना बेजार हो रहा है। जानबूझकर तड़पाने का मजा ले रहे हो, शरारती हुस्न पर सुबह बार बार हो रहा है। बहुत बहुत सुंदर। राइम लयात्मकता है, गेयता है, वो तो रहेगी। जो मतलब स्कीम रही आपकी राइमिंग की, बहुत फोर्सफुल नहीं लगी मुझे, क्योंकि जितनी मैं पोएट्री की समझ रखती हूँ, बहुत इजीली पाठक तक पहुंच रही है। कुछ शब्द हैं जो उनकी डिक्शनरी में ऐड होते हैं बतौर पाठक, तो अच्छा लगता है कि कुछ नया सीखा इस किताब से मैंने, और कुछ एक इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हुआ। तो ये पटना की यादों वाला बेकरार लिखा था, और कैसा था ये? जी, ये भी बाद में लिखा हूँ। इसमें आधे हैं जो पटना के समय के हैं, स्टूडेंट लाइफ के, और बाकी करियर में आने के बाद के हैं। ऐसा 50-50 है, लगभग 100 बोलता हूँ। पूर्णिया से कैसे संबंध रहा सर? पूर्णिया में 2021 की जनवरी में डिविजनल कमिश्नर एक हमारे आईएएस में पोस्ट होता है,
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जस्ट ऊपर जब प्रमोशन होता है तो कुछ लोग डिविजनल कमिश्नर बनते हैं, कुछ लोग स्टेट में सेक्रेटरी बनते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं। तो अच्छा। डिविजनल कमिश्नर हम पूर्णिया में और सहरसा में 2 जगह एक साथ थे। पूर्णिया 1773 के आसपास बना हुआ डिस्ट्रिक्ट था और डिवीजन तो उसके बाद का है। और वहां से वेस्ट बंगाल, नेपाल, ये सब जाने के लिए हिली एरियाज और खूबसूरत जगह वहाँ आसपास हैं, तो वहाँ बहुत अच्छा रहा। और ग्रीन एरिया है, हरा भरा। और बिहार मैंने का सवाल इसलिए पूछा, शहर। मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मेरे बहुत प्रिय लेखक फणीश्वर नाथ रेणु वो वहां से है। जी हाँ, स्कूल की मैं गया यादें था, मैं गया था उनके गांव में, उनकी स्मृति में वहां जाके हमने वहां श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके छोटे लड़के मिले मुझे, है ना। तो मैं, आपके स्कूल की यादें हैं वहाँ क्या? जी जी, मैंने मतलब स्कूल के समय में टेक्स्ट बुक में जब उनको पढ़ा है, पंचलैट पढ़ा है और भी काफी सारे फणीश्वर नाथ रेणु जी के बड़े चाव से मैं पढ़ती आई थी। आप ही की तरह मुझे था कि पहले साइंस लेना है, पर हिंदी जो है पहली वफा थी, पहली मोहब्बत थी। तो वो स्कूल की तरफ से मतलब वो नाम मेरे दिमाग में हमेशा रजिस्टर्ड रहा। कुछ लेखकों ने हमेशा एक इंगित कर दिया, हमेशा के लिए बीन एज्ड ऑन माय माइंड, अंग्रेजी में, हिंदी में, जैसे जैसे पढ़ती गई। तो इसके लिए जब मैंने पूर्णिया आपकी बायो में पढ़ा तो मैंने सोचा सर से पूछूंगी कि क्या जा पाए हैं। मैं तो अभी तक बिहार नहीं जा पाई हूँ, बहुत इच्छा है मेरी, क्योंकि काफी मेरे पसंदीदा लेखक शायर वही हैं। तो उनका गांव अभी वो पूर्णिया के बगल में, मतलब कमिश्नरी सेम है वो, मतलब डिविजनल कमिश्नर सेम है, वो अररिया डिस्ट्रिक्ट है। जी तो जी, पड़ोसी जिले हैं, पूर्णिया से ही कंट्रोल होता है अररिया, किशनगंज, कटिहार। तो अररिया में रेणु साहब का गांव है। मैं बहुत धन्य मानता हूँ अपने आप को कि सरस्वती पूजा के समय में वहां गया, सरस्वती के उपासक के गांव। कुछ तस्वीरें भी हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा उस विजिट की। बिल्कुल भेजिए, बिल्कुल भेजिए सर, बहुत सौभाग्य मेरा। और खेल के बारे में, आपने टेनिस के बारे में बताया, तो आप पुणे मेट्रोपोलिस में भी लाइक आप जाते हैं मैराथन्स में खेलने और इस तरह से? जी, टेनिस तो मैंने सीखा सर्विस में आने के बाद। बचपन में क्रिकेट और फुटबॉल आउटडोर में ज्यादा खेलता था, और घर में कैरम बोर्ड। तो टेनिस के प्रोफेशनली एक ट्रेनर रखा था, उनसे सीखा। और जब मैं पुणे मेट्रोपोलिस में था तो यहाँ पे वर्ल्ड लेवल के कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं पुणे में। टेनिस के प्लेयर्स आते हैं दुनिया भर के और वो खेलते हैं। जी। तो कभी हमने, हमारे ऑफिस में, जिसको पुणे PMRDA कहते हैं, उसमें हर साल हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दे के उसको स्पॉन्सर करते हैं। तो 3 साल करने का मुझे भी सौभाग्य मिला। तो मुझे बस वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ियों को सामने से, टीवी पे तो मैं 88 से ही देख रहा हूँ टेनिस, 1988 से ही स्टेफी ग्राफ को देखना शुरू किया, उस समय युवान लिंडल से सबको देखा। मार्टिना नवरातिलोवा का करियर लगभग कम, मतलब ढलान पे था 88 के आसपास। तो 88 से अभी तक चल रहा है ये सफर। टेनिस देखता हूँ जब भी टीवी खोल के, और अच्छा लगता है। थोड़ा खेलता है, थोड़ा आता है खेलने, अच्छा तो नहीं खेलता हूँ, थोड़ा आता है फिटनेस की टेंशन। जी जी। तो अच्छा लग रहा है एक ही पर्सनालिटी में इतने इतने पर्सनालिटीज होना, इतनी इतनी रुचियां होना और उन सबको समय भी देना। तो गाइस याद रखो कि जब आप स्क्रीन टाइम कम कर दोगे तो देन यू कैन बिकम वन ऑफ द पर्सन लाइक हिम, क्योंकि डिवोशनली किया है। किताबें तो खैर उसका बहुत बड़ा सबूत है, इम्पैक्ट है कि दोनों किताबें, बिकॉज हम पोएट्री बुक्स पढ़ते हैं पर कुछ बहुत हिट कर जाती हैं, ये दोनों किताबें वैसी हैं। और पोएट्री बुक्स की अच्छी बात ये होती है कि दर्शकों को बताना चाहूंगी, और वो अग्री भी करेंगे, मुझसे सहमत होंगे, कि आप कहीं से भी पढ़ के स्टार्ट कर सकते हो इनको। आपको स्टोरी की तरह कैरेक्टर्स को समझने की या आर्क डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती, पोएट्री को उसी की तरह पढ़ा जा सकता है। और क्योंकि सर ने स्पोर्ट्स की बात की, तो पुणे, क्योंकि सर अभी पुणे में रहते हैं और पुणे में ही सिविल सर्विसेज दे रहे हैं बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर, तो बैडमिंटन का जन्म पुणे में हुआ है। बहुत लोगों को नहीं पता है, पर बैडमिंटन जैसा स्पोर्ट
यहाँ पर जन्मा और बहुत खेला जाता है। और जितने भी स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, आप सबसे निवेदन कि प्लीज मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है कि आप में वो स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाता है, अनुशासित करता है। पोएट्री मत छोड़िए, अगर आप लिख रहे हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में है, प्लीज आगे बढ़ते रहिए। वी आर ऑन द सेम पेज विद जूही। सर से कुछ आखिरी क्वेश्चंस एंड देन वी कैन रैप अप दिस सेशन। बट बिफोर दैट आई हैव लाइक लॉट ऑफ पीपल जॉइनिंग अस सर। और यहाँ पर मैं बद्रीनाथ बुधवंत जी का नाम देख पा रही हूँ। निशा मुदगरे जी ने आपको हेलो बोला है। अनिल वार्ष्णेय जी अभी भी बने हुए हैं। और कुछ लोगों ने आपका काव्य संग्रह पढ़ा है, जिसमें से उन्होंने कहा है कि नसीहत जिंदगी नज्म संग्रह बहुत बेहतरीन है। तो आपको बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि लाइव कमेंट्स में भी बहुत तारीफ हो रही है किताब की। तो हमको इंतजार रहेगा अगली किताबों का। हास्य संग्रह आपने प्रॉमिस कर दिया है, तो कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ ही लॉन्च करें। एंड दिस इज राहुल रंजन महिवाल, करंटली पोस्टेड इन पुणे। पुणे में क्या अच्छा लगता है? आर यू अ फूडी? डू यू ट्राई, डू यू एक्सपेरिमेंट, और डू यू कुक फॉर दैट मैटर? मैम, आई डोंट कुक बट आई एम अ फूडी। सो ओके अच्छे अच्छे खाना खाता हूँ और काफी दिल से खाता हूँ। जी। फिश वगैरह, फिश काफी पसंद करता हूँ नॉन वेज में। ओके ओके। और वेज में ग्रीन वेजिटेबल्स, लेस ऑयली, लेस वो सब जो होता है हेल्थ बट कॉन्शियस यू डू वाला। नॉट गो टू पुणे स्ट्रीट फूड जॉइंट्स, ऐसे फेमस वाले हम लोग के जो सारे हैं? स्ट्रीट और यू आर फूड में नॉट, थोड़ा अवॉइड करता हूँ। डोंट हैव दैट लग्जरी टू गो? ओके। नहीं, उसकी वजह से नहीं, थोड़ा हेल्थ इशू हो जाता है, हाइपर एसिडिटी या ऐसे कुछ। तो उससे बचने के लिए मैं पहले फूड की क्वालिटी इंश्योर करता हूँ, तभी खाता हूँ। उसके बाद अच्छा खाता गुड हूँ। एक गुड बार गुड इंश्योर हो गया कि गुड। इससे कुछ नहीं होगा, तो फिर बढ़िया खाता हूँ मैं। उसको बोलते हैं ओके, ना, बढ़िया, तो ये लेकिन साहब बढ़िया खाते हैं वैसा। हाँ, बट महाराष्ट्र में आपने काफी जगहों पे आप रहे, तो कल्चरल वेरिएशंस भी आपको देखने को मिले। एनी जी, एनी खाने खाने एनी में भी बहुत एनेक्डोट, कोई किस्सा आपको याद हो परभणी बताता हूँ। का या औरंगाबाद का, या कैसे? जब सबसे पहले मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में गया, जिसको कोंकण कहते हैं, जी जी। तो मेरे लिए बिहार दिल्ली के बाद सीधा रत्नागिरी था। वो एक काफी बड़ा ट्रांजिशन था। हम्म और काफी खूबसूरत समंदर, अच्छे अच्छे पहाड़, जंगल। तो मैं खुश तो था उस वक्त, अकेला था, हम्म, फैमिली में कोई नहीं था, तो काफी वक्त था। लोग काफी खाना बाहर ही खाता था। काफी कम उम्र होने से उस वक्त तो कुछ भी खा लेता था और जी अच्छा जी। खाता था। समंदर की जो मछलियां होती है, सी फिश, हाँ वो या पहली बार मैं अच्छे मतलब बढ़िया से उधर ही खाया, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ओके जी जो अरेबियन सी के कोस्ट पे है। वहां का जी। खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, हम्म बहुत अच्छा लगा। सी फिशेज आज तक मैं उसी को सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो फूड को। फिश को, और खास करके सी फिश को। हाँ, फिर कौन मैं सी कभी, सी फिश पसंद है आपको? मुझे ये पॉम्फ्रेट, सुरमई प्रॉफिट पसंद है? और प्रॉन नहीं है। प्रॉन तो चलिए पक्का हर जगह कोंकणी मिलता हुआ है, पक्का रत्नागिरी वाला यू आर नाउ। है। फिर जब मैं डिफरेंस होता है तब क्योंकि अब बिहार साइड से है, तो बिहार में शायद रिवर फिश ज्यादा खाई जाती है। वहाँ और तो केवल मतलब लिवर ही है, स्वीट लिवर ही है। वाटर फिश, और यहाँ पर सॉल्ट वाटर फिश, वही डिफरेंस है। स्वीट फिश का भी, स्वीट वाटर फिश का भी टेस्ट था मुझे, मगर यहाँ जो हम्म दूसरा टेस्ट मिला, ये भी बहुत पसंद आया। तो जी कुछ लोगों को जो सी फिश नहीं खाए रहते हैं, बोलते हैं हमें उतना पसंद नहीं, बट मुझे दोनों सूट किया, जी। फिश कोई भी सूट किया। और क्या जब मैं बात है। इधर गया औरंगाबाद, जिसको अभी संभाजी नगर कहते हैं, बीड़ गया एक दो बार, तो वहाँ के खाने में जी, अलग था, काफी मिर्ची थी और हाँ। वो मुझे तकलीफ तकलीफ हुई, मिर्ची ओके, की तकलीफ बट हुई। पुणे में क्या अच्छा लगता है? पुण्यात काय पुणे आवडतं? बिकॉज ये पुणे वालों की पुण्यात तरफ से क्वेश्चन है, मैं भी पुणेरी हूँ। पुण्यात आम्ही जास्त हे घेतो, पुरणपोळी। काय? पुरणपोळी पुरणपोळी, माझा व्हेरी गुड। फेवरेट आहे। पुरणपोळी इज माय क्या बात फेवरेट, है। कारण की त्याच्यामध्ये मिरची नाही आहे, आणि इफ देर इज मिर्ची देन आई एम इन ट्रबल। एक्सेप्ट मिर्ची आई कैन ईट एनीथिंग इन फूड। तो पुणे क्या में तो मीठा बात है, मुझे अच्छा लगा, ये क्या पुरणपोली, बात है। या पूरे इस एरिया में अच्छा लगा, पुणे में, कोंकण हाँ, में, कोल्हापुर में। दिस और इज वेरी फिशेज गुड। एज यूजुअल। और श्रीखंड इज माय फेवरेट, श्रीखंड खाता हूँ, श्रीखंड रेगुलर मराठी भी खाता बहुत अच्छी बोलते हैं आप। हूँ। नहीं, हमारी तो दैट्स सर्विस रियली ग्रेट। बोलते ओके, तो सेशन अभी हम रैप अप करेंगे। सर से बहुत सारी बातें होनी थी, पर 50 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं। और जी। संडे है, सर ने समय दिया, बहुत बड़ी बात है गाइस। बट ये
क्योंकि he's into public eyes, he needs to rush. Okay, Sunday is also important. दिल बिल्कुल बटा हुआ है और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, to be with you on the same page with Juhi, and we hope we'll be calling you very soon again to discuss more poetry, more sports, more about civil services, and more about something else that we couldn't talk today. This was Rahul Ranjan Mahewal, IAS officer, with us on the Thank you. same page with Juhi on Literary Warriors Group, and with his 2 books, which I will encourage every reader to read. And यहाँ पर सर की ही लाइनें, और इसी से हम आपको समापन देते हैं. सर की इसी किताब से जो लाइन है, सर ने बहुत अच्छी बात की कि मुझे मॉडरेशन के लिए कुछ लिखना नहीं पड़ा, सब सर ने पहले ही लिख के किताब के रूप में मुझे दे दिया था कि शुक्रिया हम आपका, शुक्रिया हम आपका एहतराम करते हैं, आने वालों को अदब से सलाम करते हैं. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. आप ज्वाइन कीजिएगा. या थैंक्स सर, थैंक यू सो मच.